Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is editorial video from AdCoder Beginner Contest 228 problem D, that is linear probing. Okay, so if you have any doubt in problem ABC, you can just ask me in comment section. I will explain you in brief. Let's see problem D, linear probing. There's a sequence A of from A0 to An minus 1 with n is equals to 2 raised 20. Okay, so we have around 2 raised 20 terms in this array. Initially every term is minus 1. Okay, now we have to process q queries. In the ith query is described as an integer ti, where ti is equals to 1 or 2 and then another integer xi. Now if ti is equals to 1, that is query type 1, we have to define an integer h as h is equals to xi, while ah mod n, that is index h modulo n, array element with index h modulo n, if not is equals to minus 1, keep adding 1 to h. We can prove that this process end after finite iterations under the constraint of this problem. तो ये लाइन मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा. Replace the value of ah mod n with xi. Okay, so जो भी हमें h की वैल्यू मिली है, we just have to do h modulo n. उस इंडेक्स पे जाओ, check whether it is minus 1 or not. If it is not minus 1, just add 1 to h, then 1 again, then 1 again until ah modulo n does not is equals to minus 1. And whenever you got some element in the array that is minus 1, just make it as xi. Okay, and if you have type 2 query, that is ti is equals to 2, print the value of axi modulo n at that time. Okay, just check if you have element ax modulo n in the array. Okay, और जो भी उसकी value है, either it is minus 1 or either it is any value other than minus 1, just print it. And obviously you know what a modulo b means. Okay, remainder when a is divided by b. Now we have total queries 2 into 10 raised 5, so obviously we are not taking time q square. Okay, we have to do it in o of q or o of q log q something. Okay, and second value of xi can be 10 raised 18, so take long for storing values. Now here is an example. ठीक है, q queries है हमारे पास, that is 4 queries है और ये elements हैं. अब इनिशियली चेक करते हैं. इनिशियली ऑल द एलिमेंट्स एरे आर -1 एरे एलिमेंट्स. अब 1 और ये वैल्यू मिली. ओके, x मॉडलो n करो, दैट इज 2 रेज 20 मॉडल से मॉड लो तो वैल्यू मिलेगी 1. ठीक है, तो a ऑफ 1 को तुमने सिंपली क्या बना दिया, xi, बिकॉज इनिशियली a ऑफ 1 जो था वो -1 था, दैट्स वाई. आफ्टर दैट यू हैव सेकेंड क्वेरी 1 1. यू विल गो टू सिंपली a ऑफ 1, यू विल चेक दैट a ऑफ 1 इज नॉट इज इक्वल्स टू -1. Simply go to next element, that is add 1 to it. Next element is -1. Simply make a of 2. Okay, a of 2 -1 मिल जाएगा, तो simply make a of 2 as 1, that is equals to xi. Now you have type 2 query and you have to print this modulo 2 raised 20 element. Okay, just check whether value of this element and print it. Okay, and after that print this element's value. सो दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन. आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया है. अब ले समझते हैं क्वेश्चन. ठीक है, तो इनिशियली हमारे पास है क्या, वी हैव सम एरे एंड वी हैव टोटल 0 to 2 raised 20 एलिमेंट्स इन इट एंड ऑल द वैल्यूज आर इनिशियली -1. ओके, अब हमारे पास कुछ क्वेरीज हैं, क्यू क्वेरीज. फर्स्ट टाइप की क्वेरी है 1 और कोई वैल्यू ऑफ x. सेकेंड टाइप की क्वेरी है 2 कोई वैल्यू ऑफ x. ओके, फर्स्ट टाइप की क्वेरी है तो हमें इस एरे में we have to do some changes. How we can do that changes? We will simply go to index x modulo n. Okay, now what we will simply do, we will check whether this element is initially -1 or not. If it is -1, we will simply make it equals to x. If it is not, we will simply go to next element, next element, next element, next element, next element till we reach to the end of the array. If we reach end of the array, we will again go to first element, that is 0th index, then first index, then second index. Okay, so in question here that keep adding 1 to h, it simply means that we have to go to next element, next element, next element until हम last element में नहीं आ जाते. जैसे ही हमारा 2 raised 20th element आ जाता है, okay, we just again have we will go to first element again, or you can say 0th index. Okay, simple सा. एंड जैसे ही हमें सपोज ये इंडेक्स मिला था x मॉडलो n. ओके, तो x मॉडलो n से नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट जाते जाएंगे. एंड वेन एवर वी विल रीड एट सम इंडेक्स वेयर वैल्यू ऑफ a is -1,
तो हम उस एलिमेंट की वैल्यू किस में चेंज कर देंगे, सिंपली x में। ओके, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन था जिसमें हमें क्वेरी 1 ऐसे प्रोसेस करनी थी, दैट इज वी हैव टू सिंपली सर्च नेक्स्ट एलिमेंट इन द एरे which is equals to -1 and make that value as x, and in type 2 query मुझे x मॉडलो n एलिमेंट प्रिंट करवाना है, उसकी वैल्यू वेदर -1 है और कोई भी वैल्यू है वो वैल्यू। ओके फाइन, नाउ इफ वी प्रोसेस दिस क्वेश्चन लाइक नाइव अप्रोच, तो हम एग्जैक्टली करेंगे क्या, हम हर एलिमेंट में, अगर मैं थोड़ा सा नाइव सॉल्यूशन डिस्कस करूं, ठीक है, तो हम हर एलिमेंट में हमें एक बार x मॉडलो n निकालेंगे। ओके, सपोज x मॉडलो n की वैल्यू आई 5। अब तुम 5 से सपोज चेक करना शुरू करोगे वेदर a ऑफ 5 इज -1 और नॉट, देन a ऑफ 6, देन a ऑफ 7। लेट्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि तुम सारे 2⁻20 तक सारे चेक करो, ठीक है, 2⁻20 तक। इन दैट केस योर क्वेश्चन विल बी ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी q²। ओके, तो तुम्हें कुछ ऑप्टिमाइजेशन करना है सो दैट तुम करंट x मॉडलो n का नेक्स्ट एलिमेंट जो है, नेक्स्ट -1 एलिमेंट बहुत जल्दी लाइक o ऑफ 1 या o ऑफ log ऑफ q में फाइंड आउट कर सको। ओके, तो नाउ वन मोर थिंग, सपोज देयर इज अ एरे, ये कंप्लीट एरे है, ठीक है, तुम जो एलिमेंट्स चेंज कर रहे हो, ओके, सपोज ये x मॉडलो n है करेंट क्वेरी का, दिस इज x मॉडलो n। ओके, you just and this is not is equals to -1, this is some value equals to 7। ओके, फिर ये आ गया कुछ 8, फिर ये कुछ आ गया 9, इसके बाद -1 है सपोज, ठीक है, तो ये जब भी तुम्हें -1 मिला तुम्हें यहाँ पे एक x ऐड करना है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो -1 मिलेगा वहाँ पे तुम्हें x ऐड, कुछ वैल्यू चेंज x ऑफ i दोगे, फिर कुछ x ऑफ i दोगे, ठीक है फाइन। तो अब तुम्हें ये जो फर्स्ट क्वेरी है, फॉर दिस फर्स्ट क्वेरी तुम्हें एग्जैक्टली करना क्या है, x मॉडलो n करना है, और x मॉडलो n में जो भी इंडेक्स मिला, इधर वो इंडेक्स -1 है, अगर वो -1 है सिंपली जस्ट चेंज द वैल्यू ऑफ दैट इंडेक्स एंड मेक इट टू इक्वल्स टू xi, एंड इफ इट इज नॉट -1 यू हैव टू फाइंड आउट जस्ट नेक्स्ट वैल्यू टू इट्स राइट जो कि -1 है। अगर राइट में कोई भी -1 नहीं है देन जस्ट गो टू द फर्स्ट वैल्यू, इतना तुम्हें करना है। नाउ हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट, सो अब क्लोजली एनालाइज करो अगर क्वेश्चन को, तो एग्जैक्टली होगा क्या, यू विल बी हैविंग सम इंटरवल्स इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, इनिशियली जो तुम्हारा इंटरवल होगा, इनिशियली ऑल द वैल्यूज आर -1 इन द एरे। ओके, तो इनिशियली अगर मैं बोलूँ तो इंटरवल कितना होगा, 0 to 2⁻20, ये जो इंटरवल है ये है -1 वैल्यूज का इंटरवल। ओके, अब वेन एवर यू विल मेक सम वैल्यू, सपोज अब तुम कोई वैल्यू को क्या करते हो, -1 से चेंज करते हो, दैट इज यू आर प्रोसेसिंग और यू आर प्रोसेसिंग टाइप 1 क्वेरी। ओके, सपोज तुमने 5th एलिमेंट को a ऑफ 5 को चेंज किया, ठीक है, तो अब मैं इस इंटरवल को कैसे चेंज कर सकता हूँ, 0 to 4, अब मेरे पास -1 है, एंड 6 to 2⁻20 अब मेरे पास -1 है, ठीक है। अब सपोज मेरे पास कोई नेक्स्ट क्वेरी आई, दैट इज चेंज a ऑफ, और यू कैन से अब मेरे पास एक क्वेरी आई 1 एंड दैट इज टाइप 1 क्वेरी एंड 20। what I will simply do, I will do firstly 20 modulo 2 in 2⁻20, okay, I will get 20। I will simply check जो मेरा 20 है वो कौन से इंटरवल में आएगा। ओके, सपोज फॉर नाउ 20 will arrive in this interval, that is 6 से 2⁻20। ओके, मैं सिंपली क्या करूँगा, I will simply convert this interval into 2 intervals। ओके, 6 से 19 तक एंड 21 से 2⁻20 तक। ओके, तो इस तरह मैं क्या कर सकता हूँ, -1 के इंटरवल से स्टोर कर सकता हूँ। ओके, -1 के इंटरवल से स्टोर करने के बाद what I can simply check is whether this value x modulo n is inside some interval or not। ओके, सपोज इन केस अगर ये इंटरवल के बीच में है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली उस एलिमेंट को दैट इज a ऑफ 20 को xi के इक्वल बनाऊंगा एंड सिंपली आई कैन ब्रेक
सिंगल इंटरवल इंटू टू इंटरवल्स सेपरेट, और इस इंटरवल को इंटरवल से हटा दो, ओके। अदरवाइज व्हाट एल्स आई कैन डू, सेकेंड केस क्या हो सकता है कि ये जो वैल्यू 20 है ये किसी इंटरवल के बीच में ना पड़े, ओके। सपोज मेरे जो इंटरवल्स थे कुछ ऐसे थे, टेलिंग यू 1 सेकेंड, सपोज मेरे इंटरवल्स कुछ ऐसे थे, 6 थे, 15, मेरे पास -1 था, एंड 25 से 2⁻20 तक मेरे पास -1 था, ठीक है। यहाँ पे कुछ वैल्यूज थी 16 से 24 तक जो मैं चेंज कर चुका था ऑलरेडी, ठीक है। तो अब x मॉडलो n आया इज इक्वल्स टू 20, बट 20 इज नॉट इक्वल्स टू -1, ओके। तो 20 नॉट इक्वल्स टू -1 है, तो व्हाट आई विल सिंपली डू, आई विल गो टू 21 इंडेक्स, बट स्टिल 21 इज नॉट इन एनी इंटरवल, ओके। आई विल गो टू 22, आई विल गो टू 23, आई विल गो टू 24, आई विल गो टू 25, एंड वेन एवर 25 मुझे मिला और वो किसी इंटरवल में आ रहा है, आई कैन से दैट दिस वैल्यू, दैट इज दिस वैल्यू 25, और यू कैन से इस इंटरवल का जो लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट वैल्यू है, दिस इज द first -1 value which I am getting on adding +1 to h, okay. So you can simply find out this value and make this value as xi. So this was the whole concept or approach for this question. What you can do, you can store intervals of -1 in this question, okay, and simply check कि जो तुम्हारा x मॉडलो n है वो x मॉडलो n किसी इंटरवल में आ रहा है या नहीं. If it is coming in some interval, just simply break your interval into two separate intervals and उसके बीच में एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी and that thing you can do easily, ठीक है. And if it is not coming in between any interval, what you can simply do, तुम उसका अपर बाउंड फाइंड करो, ठीक है. सपोज 20 था तो आप 20 का अपर बाउंड फाइंड करो. सिंपली 20 का अपर बाउंड फाइंड किया जैसे ही तुमने, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, उसका जस्ट नेक्स्ट इंटरवल. उस नेक्स्ट इंटरवल में सिंपली चेक कर लो. इफ इस नेक्स्ट इंटरवल में तुम्हें ये 20 मिल रहा है, यू कैन सिंपली ब्रेक इट इनटू टू सेपरेट इंटरवल्स. इफ इसमें नहीं मिल रहा है, देन इस वाले इंडेक्स को सिंपली क्या कर दो, इक्वल्स टू xi बना दो. एंड ये जो इंटरवल है अब इसको किस में चेंज कर दोगे, 26 2⁻20 में, बिकॉज नाउ यू हैव -1 ओनली इन दिस इंटरवल एंड 25th जो है वो xi के इक्वल बन गया. ओके, सो दिस वॉज योर कंप्लीट क्वेश्चन. नाउ हाउ यू कैन स्टोर इंटरवल्स इन द क्वेश्चन, ये तुम्हारा जो मेन पार्ट है अब यहाँ पे अराइज होता है. ओके, सो यू कैन ऑल्सो यूज ट्रीज, फेनविक ट्री और बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है, सेगमेंट ट्री वगैरह. बट वन मोर थिंग, सिंस वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन ओ ऑफ लॉग क्यू लॉग क्यू ऑल्सो. ओके, तो हम एक क्वेरी को लॉग क्यू में प्रोसेस कर सकते हैं. एंड इफ यू नो मैप इन C++, okay, if you know map, what we can do is we can store one interval as map key value pair. okay, तो अगर हमें li ri एक इंटरवल स्टोर करना है, we can simply store map of ri is equals to li. okay, हम इस वे में स्टोर कर सकते हैं. एंड इसमें जो अपर बाउंड होता ठीक है, मैप में अपर बाउंड जो होता है, you can also use binary search to calculate just greater value than your x modulo n to find out in which interval it is going to occur. okay, otherwise you can also use upper bound to find the interval. what you will simply do, जो upper bound होता है वो next greater key की वैल्यू देता है, next greater key की वैल्यू. फाइन, तो if you will write map का name dot upper bound and value that is x modulo n here. okay, so it will give you वैल्यू ऑफ नेक्स्ट ग्रेटर की. ओके, और यू कैन से नेक्स्ट ग्रेटर ri की वैल्यू देगा, क्योंकि की में हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, राइट पार्ट ऑफ इंटरवल. ओके, तो x मॉडलो n का अपर बाउंड अगर निकालोगे तो वो सिंपली तुम्हें नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू ऑफ दिस देगा. फाइन, तो इफ यू हैव सम नंबर ऑफ इंटरवल्स li ri, li डैश ri डैश, li डबल डैश ri डबल डैश. ओके, तो तुम्हें सिंपली x मॉडलो n के लिए
नेक्स्ट ग्रेटर आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो देयर इज टू पॉसिबिलिटीज कि वो जो एक्स मॉडुलो एन है वो इस इंटरवल में आए, अदरवाइज यहाँ पे जो वैल्यूज चेंज हो गई हैं उसमें आए। ओके, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नाउ आई एम शोइंग यू द कोड एंड आई होप ये भी समझ में आ गया होगा व्हाई आई एम स्टोरिंग RIS की एंड LIS वैल्यू, सो दैट अपर बाउंड में मैं नेक्स्ट ग्रेटर अपर बाउंड दैट इज किस इंटरवल में मिलेगा वो फाइंड आउट कर सकूँ। ओके, तुम LI RI भी स्टोर कर सकते हो, LIS की एंड RIS वैल्यू। ओके, वहाँ पे ये चीज़ मैनेज कर लेना। आई होप इट इज़ ईजी। ओके, तो नाउ आई एम शोइंग यू द कोड हेयर। वैल्यू ऑफ n इज पावर 2 रेज 20, q की वैल्यू ली। अब मैप में मैं इंटरवल स्टोर करने वाला हूँ और इस मैप में मैं वैल्यूज, ठीक है, जो जो वैल्यूज मैं चेंज करता जाऊँगा इंडेक्स में। नाउ सिंपली इंटरवल साइज 0, इंटरवल ऑफ साइज इक्वल्स टू 0 इनिशियली, बिकॉज आई हैव इंटरवल इनिशियली जिसमें -1 है फ्रॉम 0 to 2 रेज 20। एक क्वेरी प्रोसेस की, वैल्यू ऑफ t एंड x इनपुट लिया। इफ t इज इक्वल्स टू 1, सिंपली टेक x मॉडुलो n इन i and find out the upper bound that is next greater value और next interval जिसमें वो आ सकता है। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ RI। अब मेरे पास एक इंटरवल है LI RI। एक पॉसिबिलिटी है इसके बीच में आएगी मेरी x मॉडुलो n, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कहीं पे जो वैल्यूज़ मैं चेंज कर चुका हूँ उस केस में मैं इसको चेंज कर दूंगा सिंपली। ठीक है, तो इफ़ वो वैल्यू है ही नहीं, दैट इज एंड ऑफ इंटरवल मिल गया, मैप में वो वैल्यू है ही नहीं, तो यू विल सिंपली गो टू द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज i इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा एंड इटरेटर क्या हो जाएगा, बिगिन ऑफ इंटरवल दैट इज फर्स्ट इंटरवल विच आई हैव इन द मैप। नाउ सिंपली चेक वेदर i इज ग्रेटर देन इंटरवल इटरेटर डॉट सेकेंड। ओके, इट मीन्स दैट जो वैल्यू है तुम्हारी x मॉडुलो n वो इसके बीच में आ रही है, दैट इज इफ इटरेटर डॉट सेकेंड से बड़ी है या इक्वल है तो इस इंटरवल में है वो वैल्यू। ओके, सिंपल सी चीज़ है। सिंपली अपडेट द वैल्यू ऑफ मैप ऑफ i एज x। ओके, मैप ऑफ i एज x एंड अब मेरे पास सेम इंटरवल को मुझे दो इंटरवल में डिवाइड करना, दैट इज L1 R1 L2 R2। सिंपली मेक इंटरवल L1 R1 एज इटरेटर सेकेंड से, दैट इज इनिशियल L1 टू i एंड दूसरा इंटरवल क्या बन जाएगा i+1 से r। ओके, एंड जो प्रीवियस इंटरवल था दैट इज इटरेटर यू कैन से, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंटरवल में इटरेटर में लिया है। ठीक है, इरेज इट फ्रॉम मैप एंड नाउ सिंपली चेक वेदर L1 इज डज नॉट इज इक्वल्स टू R1 है तो उस इंटरवल को अपडेट कर दो अपने इंटरवल मैप में, एंड इफ L2 डज नॉट इज इक्वल्स टू R2 है देन अपडेट इट एज वेल। ओके, in other case when x modulo n is not in that interval, in that case what you will simply do, you will simply make map of initial जो L1 की वैल्यू थी equals to x and जो वैल्यू थी simply L1 और Li और Ri था। ठीक है, और तुम्हारी वैल्यू x मॉडुलो n यहाँ पे है, तो you will simply change this value और जो अब इंटरवल है वो कहाँ से हो जाएगा Li+1 से Ri तक। सिंपल सी चीज़ है। ओके, सो इटरेटर डॉट सेकेंड को +1 कर दो एंड इफ इक्वल है तो उसको इरेज कर दो बिकॉज वी डोंट नीड दिस इंटरवल एनी मोर। अदरवाइज इफ वी हैव टाइप 2 queries just simply find out that value and if it is end of the map simply print -1, that means if we haven't changed that value yet, otherwise print value of that element. Thank you guys for watching this video. If you still have any doubt in this question, you can just ask me in comment section. I will explain you in brief again. Thank you guys for watching.